Dear student, we are discussing about the motion in previous video, and we are defining the different kind of motions. Then after, what is distance, what is displacement, and now we are going to start the types of motion: uniform motion and non-uniform motions. So let us see what is uniform and what is non-uniform motion. The first one, uniform motion. What do you mean by the uniform? It means everyone is equal. So the given the name of the terms are uniform. That means when we talk about the uniform motion, the equal distances travel by the body in equal interval of time. When we talk about the uniform motions, we just say that the equal distances traveled by the body in equal interval of times. It means, suppose object is here, the point of A, and they travel and reach the point B, and again they travel B to C, and the distance is A and B is 20 meter, and B to C also 20 meter. When they start with the point A and reach the point B, and they travel the 20 meter distance travel and take a 5 minutes, and again they travel B to C and the distance travel 20 meter, again the time taken is 5 minutes. It means the covered 20 meter distance and taken time 5 minutes, again B to C travel 20 meter and time taken is 5 meter. It means here distance is equal and interval of time is also equal. This type of motion shown the uniform motion. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करता है और हर बार ट्रैवल करने के लिए वो टाइम टेकन जो है वो बिल्कुल इक्वल लेता है, और उसके द्वारा तय की गई दूरी भी जो है वो हर बार इक्वल होती है, तो हम कहते हैं कि इस तरह का जो मोशन है वो यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करता है. मैंने लिखा भी है, द इक्वल डिस्टेंसेस ट्रैवल बाय द बॉडी एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. और आप इस कॉन्फ़िगर से इस बात को देख भी सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पहले ए पे था, ए से बी पे गया, बी से सी पे आया, ए से बी के बीच की जो दूरी थी वो 20 मीटर है, बी से सी की जो दूरी थी वो 20 मीटर है, और हर बार इस 20 मीटर को ट्रैवल करने के लिए जो टाइम टेकन लग रहा है वो 5 मिनट है, और बी से सी तक आने में फिर टाइम टेकन जो है वो 5 मिनट है. यानी इस तरह का मोशन जब बार बार रिपीट होता है और टाइम टेकन रिपीट होने के बाद जो डिस्टेंसेस ट्रैवल है वो भी हर बार इक्वल होता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो अब देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. Unequal distances travel unequal distances travel by the body in equal interval of time. That is
represented to non-uniform motion. Here take example and understand. Suppose object is here point A and travel and reach the position B. The distances between the A and B is 30 meter, and again they travel B to C, and the distances between B and C is 40 meter. Again they travel C to D and travel 50 meter. A to B travel and distance travel is 30 meter and time taken is 1 hour. B to C also time taken is 1 hour. C to D travel 50 meter and time taken is 1 hour. So here we see that the time is equal, but the every time distances is the differences. आप देख सकते हैं कि A से B ट्रैवल करने में 1 घंटे का वक्त लगता है, B से C भी ट्रैवल करने में 1 घंटे का वक्त लगता है, C से D भी ट्रैवल करने में 1 घंटे का वक्त लगता है, लेकिन हर घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया गया है आप देख सकते हैं वो चेंज हो रहा है. ये 30, देन 40, देन 50. तो ये अनइक्वल डिस्टेंसेज हैं, लेकिन आप बार बार देख सकते हैं कि यहाँ जो टाइम टेकन जो है वो इक्वल टाइम टेकन है, इसलिए ये बात लिखा भी गया है अनइक्वल डिस्टेंसेज ट्रेवल बाय द बॉडी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. टाइम टेकन इक्वल ही है, लेकिन ये जो डिस्टेंसेज हैं वो बार बार बदल रहे हैं. तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपने मोशन को रिप्रेजेंट करता है और टाइम टेकन इक्वल होने के बाद अपने डिस्टेंसेज को बदलता है, तो ऑब्जेक्ट के साथ जो मोशन होता है उसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन. तो हमने आपको बताया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन के फॉर्म में जब बातें करते हैं तो आप ये बात कहते हैं यूनिफॉर्म के लिए, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम it is shown the uniform motion, and when object unequal distances travel by the equal period of time, it means they are represent the non-uniform motion. So we are discussed about the uniform motion and non-uniform motion. What is uniform motion and what is non-uniform motion? The next topic is speed. Speed. What do you mean by the speed? How can you calculate the speed? So let us see what is speed. Suppose a person A travel a distance is 100 kilometer, and point A and B are represent the distances between the terms. The distance between A to B is 100 kilometer. Suppose a person X travel and cover the 100 kilometer in 1 hour. Another person Y, they travel and take a time for 100 kilometer 2 hours. Another person Z and travel 100 kilometer in 3 hours. So we see that हम ये देख सकते हैं कि distances is equal, but every person take a time is different way. The first one is completed in 100 kilometer in 1 hour. The second one 100 kilometer travel in 2 hours, and the third one is travel in 3 hours. It means when we talk about the terms, we can see that the speed is the differ from x to y, y to z.
we written x is faster, y is less than x, and z is less than x and y. It means the x travel very fastly. They are also known as the speedy. So here have clear कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो x के द्वारा तय किया गया, y के द्वारा तय किया गया, z के द्वारा तय किया गया, ये हर बार पर्सन के द्वारा जो दूरी तय करने का वक्त था वो किसी का ज्यादा है, किसी का कम है, लेकिन दूरियां वही है। इसका मतलब है कि ये चेंज हो रहा है वो स्पीड की वजह से हो रहा है। तो अगर हम स्पीड को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हम ये बात लिखते हैं, स्पीड द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम। It means the object travel in per unit time. They are also written speed equal to distance by time taken. The distance is calculated in a meter. SI unit. द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट के तहत डिस्टेंस के लिए जो ऐसा यूनिट है वो मीटर है, और टाइम के लिए जो हम बात करते हैं तो वो है सेकेंड। इट मींस स्पीड के लिए जो ऐसा यूनिट का टर्म से होता है मीटर पर सेकेंड। ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जब इसे बिग लेवल पे देखते हैं तो स्टैंडर्ड कहने का मतलब क्या होता है, मतलब कि जब कोई नंबर ऑफ पर्सन इसका इस्तेमाल करते हैं, जब मास लेवल पे इस्तेमाल करते हैं वो स्टैंडर्ड वर्जन कहलाता है। और जैसे आपने देखा होगा किलोमीटर है, माइल्स है, तो वो सबके रेंज बदलते हैं तो वो भी बदल चला जाएगा। जैसे देखिए अगर ये मीटर पर सेकेंड है तो ये स्मॉल यूनिट के लिए है, किलोमीटर पर आवर्स के फॉर्म में होता है, तो ये चेंज करने के फॉर्म में है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्पीड क्या है तो आप उसे बोलेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम, मतलब सबसे छोटे समय में जो दूरी तय की जाती है, इकाई समय में जो दूरी तय की जाती है उसे हम लोग स्पीड कहते हैं। यहाँ पे हमने लिखा भी है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, और उसके लिए जो एसआई यूनिट का जो फॉर्म है वो मीटर पर सेकेंड है। एंड नेक्स्ट वन, अ यूनिफॉर्म स्पीड। uniform speed, when an object equal distance travel and equal interval of time, it is known as uniform speed. We just understand through the example. Suppose object A start with the point A and they travel point B, and the distances of A and B is 100 kilometer, and they also travel B to C, the distance is 100 kilometer, and they travel C to D, also 100 kilometer. We just retain the equal distance travel and an equal interval of time. It is known as the uniform speed. It means
This distance traveled by the body and take a time is 1 hour. So absolutely this is also is 1 hour. And again they travel and take a time 1 hour. तो हम देख सकते हैं कि हर बार 100 किलोमीटर तय करने के लिए 1 घंटे का वक्त लग रहा है। इसका मतलब है कि इस तरह का जब कोई ऑब्जेक्ट मूवमेंट को दिखाता है, ट्रेवल को दिखाता है, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट के साथ जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे इस फॉर्म को? इट मीन्स 100 किलोमीटर पर आवर। और 4 आवर के लिए अगर आप देखते हैं कि ये 3 आवर के लिए था तो 300 किलोमीटर, अगर 4 आवर के लिए होता तो 400 किलोमीटर। यानी कि हर बार वो जो दूरी तय कर रहा है उसके लिए टाइम टेकन बिल्कुल इक्वल ले रहा है। तो ऑब्जेक्ट के साथ जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं आप यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड भी कह सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड unequal distances travel in equal period of time. It means the every equal time by the body, but the distances are every time different. Let us see. Object is here point A and they travel and reach the point B for 1 hour and travel the distance 50 kilometer. Again they travel for 1 hour and reach the C and travel 60 kilometer. Again they start C to D, take a time 1 hour and travel 70 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्लियर है कि हम देख सकते हैं कि टाइम टेकन इज इक्वल फॉर द एवरी इंटरवल फॉर्म्स बट द डिस्टेंसेज आर डिफर। हियर 50, here 60 and here 70. For the first hour they travel 50 kilometer. Again B to C take a time 1 hour and they travel 60 kilometer and travel C to D and take a time 70 kilometer. It means here have the distances are different but the time taken is equal. This type of speed are known as the non-uniform speed. इसी में हम एक चीज और देख लेते हैं कि इस तरह के फॉर्म नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होता है तो उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। सपोज कीजिए एग्जांपल के थ्रू कि वी आर गोइंग टू स्कूल एट द पॉइंट होम टू स्कूल। तो आपने देखा होगा कि स्कूल से आपके घर जाने में या आपके घर से स्कूल आने में टाइम लगता है 10 मिनट। तो उस 10 मिनट को अगर हम कैलकुलेट करें आपकी एवरेज स्पीड की तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हो सकता है कि जब आप घर से चल रहे हो अ वेरी क्राउड ऑन द रोड देन यू स्लो, व्हेन यू फ्री ऑन द रोड्स एंड दे ट्रैवल फास्टर। बिल्कुल ऐसा होता है कि जब क्राउड होता है तो अगर आप साइकिल से हैं तो आपकी स्पीड कम जाती है, जब रास्ता खाली होता है तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो उस वक्त अगर हम बात करें कि आपके घर से आज स्कूल तक पहुंचने में कितना वक्त लगा तो आप बोलते हैं 10 मिनट। तो ये टोटल टाइम जो है कंज्यूम जो है वो आपके एवरेज स्पीड को बताता है कि आप 10 मिनट में इतनी दूरी तय की है। तो आपका अगर मान लेते हैं इसको ऐसे समझते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड, इट मीन्स 1 सेकेंड में ट्रेवल जो किया गया है वो 10 मीटर है। ठीक है, अगर हम बात करें कि अगर कोई दूरी है
100 मीटर की, तो 1 सेकंड में 10 मीटर है, तो 100 मीटर दूरी तय करने में कितना वक्त लगेगा? 10 सेकंड का वक्त लगेगा। इसमें हो सकता है कि ऑब्जेक्ट फास्टर भी हो, ऑब्जेक्ट स्लोअर भी हो, लेकिन ऑन एन एवरेज की जब बात करते हैं तो आप कितने वक्त में वहां तक पहुंच जाते हैं फाइनल डेस्टिनेशन में, तो आप उसे कैलकुलेट करके उसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहां भी बिल्कुल वही बात है कि अगर हम इस फॉर्म की बात करें कि अगर ऑब्जेक्ट अगर देखें तो कंप्लीट ट्रेवल कितना किया, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर एंड 70 किलोमीटर, तो फिर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? 60 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते हैं आप, 50 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते हैं आप, 70 किलोमीटर भी नहीं बोल सकते हैं। तो क्या करेंगे कि इसे हम एवरेज स्पीड में काउंट करेंगे। तो इसके लिए इसी फॉर्म में देखिए, एवरेज स्पीड, बिल्कुल सिंपल वे में है ये। तो एवरेज स्पीड के लिए लिखते हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकिंग। तो इसी फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है, 50 प्लस 60 प्लस 70, और टाइम टेकन कितना है, 1 आवर, 2 आवर एंड 3 आवर, यानी कि 3। इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका 110 एंड 70, 180 बाई 3। इसे कट करेंगे और आपके पास 60 आया, यानी ऑन एवरेज की बात करते हैं तो ये जो फॉर्म है नन फॉर्म का, वो आपको एवरेज स्पीड देगा। आप यहां पे इस तरह का इस्तेमाल करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टाइम टेकन हमने इस फॉर्म के लिए निकाला, और कितना आया ऑन एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि इस पूरी दूरी को तय करने में, ए से लेकर डी तक जो पूरी दूरी तय की गई है, उसके लिए जो स्पीड काउंट किया गया है, ऑन एवरेज जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटे के रफ्तार से जो है आपने ड्राइव किया और आप उस डेस्टिनेशन तक पहुंच गए। बीच में आप देख भी सकते हैं कि वो स्लो भी था, फास्टर भी था, लेकिन ऑन एवरेज की बात करते हैं तो इनिशियल से लेकर फाइनल तक जो स्पीड था वो 60 किलोमीटर पर आवर था। तो ये फॉर्म है एवरेज स्पीड के लिए। तो हमने आपको स्पीड के बारे में बताया, स्पीड क्या है, तो आप स्पीड के बारे में बोलेंगे कि डिस्टेंस ट्रैवल इन अ पर यूनिट टाइम एंड द एसआई यूनिट ऑफ द मीटर पर सेकेंड। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जब बात करते हैं तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। जब यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो वहां पे लिखेंगे इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल इन इक्वल पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सारे फॉर्म जो है वो स्पीड को दिखाते हैं। तो स्पीड को अगर हम कैलकुलेशन करके बताएं कि इसका कैरेक्टर क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक स्पीड देख लीजिए आप। क्वांटिटी की बेस पे सबसे पहले अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। अगर आपसे पूछेगा कि स्केलर क्वांटिटी क्यों कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी आप उसे कहते हैं कि जिसके पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड के पास केवल और केवल मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड मतलब मेजरमेंट। स्पीड की जो फॉर्म है वो कांस्टेंट होते हैं। जब कांस्टेंट होते हैं तो आप उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं, और जब अनइक्वल के फॉर्म में होते हैं तब आप उसे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। स्पीड के लिए फॉर्मेट है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। उसके बाद एसआई यूनिट की बात करते हैं तो डिस्टेंस के लिए मीटर और टाइम टेकन के लिए सेकेंड। ये स्मॉलर यूनिट है। जब बड़ा यूनिट होता है तो जैसे मीटर की बात करते हैं तो किलोमीटर में, और सेकेंड का हो जाता है आवर में। तो ये बड़ा यूनिट है, तो उसको भी देख लीजिए आप, किलोमीटर पर आवर
ये इसका SI यूनिट है। उसके बाद एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द टोटल टाइम टेकन। तो आज आपने देखा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है। देन आफ्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पीड, व्हाट इज स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, देन आफ्टर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड एंड एवरेज स्पीड। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्सेलरेशन क्या है और वेलोसिटी क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।